Hello students, welcome to my channel. Today we will going to discuss transcription in eukaryotes. So in our last video we have discussed the transcription in case of prokaryotes. So transcription in case of prokaryotes, that is different in case of eukaryotes, because in case of prokaryotes like bacteria, there is no difference between the nucleus and the cytoplasm, because nucleus is not well defined in case of bacteria or the prokaryotes. So both the process transcription and translation takes place at the same time and at the same place, but in case of eukaryotes transcription is different. In case of prokaryotes, only one RNA polymerase can catalyze all types of steps of transcription. What are the three steps of transcription? Initiation, elongation and termination. So there was the requirement of the two factors, sigma factor and the rho factor, and these factors provide RNA polymerase the additional specificity. But in case of eukaryotes, there are the different RNA polymerase which help in the transcription process. And in case of eukaryotes, there is the further processing of hnRNA. What is hnRNA? That is the heteronuclear RNA, or we can say that is the precursor of mRNA. mRNA बनने से पहले जो उसका स्टार्टिंग का mRNA बनेगा, जो एक फुली मैच्योर mRNA नहीं होगा, वो बनेगा यूकैरियोट्स में. बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर इज नो फर्दर प्रोसेसिंग. सो लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ eukaryotes. So there are the requirement of the three RNA polymerase in case of eukaryotes. So there are the three types of RNA polymerase. First, RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. So how you can learn these RNA polymerase? We can take the example of RAMIT. So what is RAMIT? In 12th class, the chapter first is there, and there the one topic that is the vegetative propagation. So what is vegetative propagation? In vegetative propagation, when any vegetative part of the plant is used for reproduction. So it is the asexual type of reproduction, only single parent is required, and the vegetative part. So vegetative part, that may be the root, that may be the stem or the leaves. So in vegetative reproduction, the new organism that is known as clone. What is clone? That clone is morphologically and anatomically similar to the parent, and that clone is known as RAMIT. Now how you can learn these three RNA polymerase with the help of this word. So RAMIT, here you have to remove the vowel A and E. Now what is left? RMT. So this, here you have to write RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. So RNA polymerase 1 help in the formation of the rRNA, ribosomal RNA. RNA polymerase 2 help in the formation of mRNA, and 3 help in the formation of tRNA. So how this question come in your exam? क्वेश्चन आ जाता है कि जो RNA polymerase 3 है वो कौन से टाइप का RNA बनाएगा. तो आप याद करोगे RAMIT, RAMET. So 3, 1, 2, 3. So आप बोल सकते हो that RNA polymerase 3. So by this word you can learn the which type of RNA is formed by which type of RNA polymerase.
because in case of prokaryotes only one RNA polymerase is there which can do all the function. Only the factors are required, the sigma factor and the rho factor. Sigma factor help in the process of initiation and the rho factor help in the formation of termination. But in case of eukaryotes there are the three types of RNA polymerase except the organelle polymerase. जो organelle RNA polymerase है उसके अलावा जो 3 RNA polymerase होंगे. सो फर्स्ट RNA polymerase, और ये क्या बनाएगा, राइबोसोम्स की जो स्मॉल सब यूनिट्स होती हैं, सो 28S, 18S एंड 5.8S. So these are also formed by this RNA polymerase. Then RNA polymerase 2 mRNA बनाता है. बट जो यूकैरियोट्स में जो mRNA बनता है स्टार्टिंग में ही उसको हम mRNA नहीं बोलते, उसके अंदर कुछ चेंज होता है. तो स्टार्टिंग में जो mRNA बनेगा उसको हम बोलेंगे mRNA, हिट्रोन्यूक्लियर जो आप बोल सकते हो mRNA होगा, जिसके अंदर फिर फर्दर चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस क्या होंगे वो भी अभी हम पढ़ेंगे. तो इसको हम बोलते हैं हिट्रोन्यूक्लियर mRNA और ये mRNA बोला जाता है. सो दैट इज द mRNA, that is the precursor of mRNA. Next is the RNA polymerase 3. So RNA polymerase 3 help in the formation of transfer RNA and also the 5S RNA, that is the snRNAs. snRNAs ये एक टाइप का जो स्मॉल न्यूक्लियर RNA होता है जो बनाया जाता है RNA polymerase 3 से. और दैट इज़ ये जो 5S RNA है, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सब यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. जो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट होती है उसको बनाने में ये हेल्प करता है. सो दीज आर द डिफरेंट RNA polymerase which help in the process of transcription in eukaryotes. Now the steps which takes place in the transcription of eukaryotes we can say. तो हम जो देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन जब होती है DNA के अंदर, तो DNA के जो दोनों ही स्ट्रैंड होते हैं वो टेम्पलेट का काम नहीं करते इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. रेप्लिकेशन में तो दोनों ही स्ट्रैंड जो हैं वो काम करते हैं किसका, मीन्स नया DNA बनाने का. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. एक स्ट्रैंड होता है कोडिंग स्ट्रैंड एंड वन स्ट्रैंड, नेक्स्ट स्ट्रैंड इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड. तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड. तो अगर हम इसमें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 5 प्राइम 3 प्राइम, इधर से जो हो गया 5 प्राइम 3 प्राइम, तो एक स्ट्रैंड जो है हमारा वो कोडिंग स्ट्रैंड की तरह काम करेगा. जिस स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है वो किस तरह से होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो यहाँ पे आप इसमें इस तरह से शो कर सकते हो, दैट इज़ द RNA polymerase. और what is this, that is the newly synthesized mRNA and here you can write 5 prime. और यहाँ से जब ये बनेगा तो इस तरह से एक नया mRNA बनेगा. इसको हम mRNA क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ चेंजेस होंगे. और ये यहाँ पर आप लिखते हो 5 प्राइम एंड यहाँ हो जाएगा 3 प्राइम एंड. तो इसको मैं यहाँ पर इसमें बीच में रेड कलर भी इसमें शो कर रही हूँ इस तरह से. तो ये प्रोसेस हुई ट्रांसक्रिप्शन की, बट इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं और वो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं. तो जब ये RNA सिंथेसिस होगी, जो mRNA सिंथेसिस होगी, ये कैसे होगी,
5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पर हम दो पार्ट बोल सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट, जो हमारा ऊपर जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हेड, जो पीछे पार्ट होगा टेल। तो जो कैप होती है वो कौन से पार्ट पे पहनाई जाती है? हेड पे। हेड पे क्या होगी? कैप। और जो टेल है, टेल पे टेलिंग होगी, टेलिंग हम बोल सकते हैं। तो जो ये प्रोसेसिंग होती है इस HMRNA की, उनके 3 स्टेप होंगे। फर्स्ट इज नोन एज द कैपिंग, सेकेंड इज स्प्लाइसिंग एंड थर्ड इज टेलिंग। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो कैप होती है वो किस पे पहनाई जाती है? हेड रीजन पे। तो हेड रीजन पे कैप पहनाई जाएगी, मतलब जो ये 5 प्राइम एंड है इस पे कुछ ऐड किया जाएगा, कुछ कैप पहनाई जाएगी। और वो कैप कैसी होगी? वो उस कैप का जो ब्रांड होगा वो होगा मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब MGPP ब्रांड की जो कैप पहनाई जाएगी। कौन से एंड पे? 5 प्राइम एंड पे, इस पे। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैपिंग। सो व्हाट इज कैपिंग? आप यहाँ पर दोबारा से बना सकते हो, इस तरह से आप इसमें बनाओगे 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, और यहाँ ये इसमें ऐड करोगे। और इस पार्ट पे 5 प्राइम एंड पे अब क्या ऐड किया आपने? एक कैप पहनाई। और ये कैप किसकी है? MGPP मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कैपिंग। अब उसके बाद सेकंड स्टेप है, दैट इज द स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग क्या होता है? जो यूकैरियोट्स में स्टार्टिंग में जो mRNA बनता है उसको हम mRNA नहीं बोलते, उसको हम HMRNA बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ चेंज होना होता है जिसको हम प्रिकर्सर, ये HN-mRNA बोलते हैं। इसको बोलते हैं हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर mRNA, क्योंकि इस mRNA में अभी वो सीक्वेंस भी हैं जो किसी के लिए कोड नहीं करती, जो फंक्शनल सीक्वेंस नहीं है और जो आगे फर्दर ट्रांसलेशन प्रोसेस में इंटरफेयर करेंगी। तो उन सीक्वेंस को हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। अब जैसे ये रेड कलर है इसको हम बोलेंगे इंट्रॉन्स, और ये ब्लैक कलर है इसको हम बोलेंगे एक्सोन। तो जो सेकेंड जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे स्प्लाइसिंग। तो अब इस स्प्लाइसिंग प्रोसेस में क्या होगा? जो ये जहाँ पे रेड कलर था, मतलब जो ये इंट्रॉन्स थे, ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ये कैपिंग तो यहाँ पे हो ही गई है और ये रिमूव हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम बोल देंगे स्प्लाइसिंग, दैट इज़ नोन एज स्प्लाइसिंग। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको हम बोलेंगे टेलिंग। सो व्हाट इज़ टेलिंग? टेल कहाँ होगी? टेल पार्ट पे। तो यहाँ पर टेलिंग की जाएगी, और ये टेलिंग किसकी होगी? पॉली एडिनाइलेट। पॉली एडिनाइलेट मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारे AA, लास्ट में ऑलमोस्ट 200 तक A जो सीक्वेंस है, जो एडिनिन है, वो जुड़ता जाएगा। ठीक है। सो दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में जो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है, दैट इज़ डिफरेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, because in case of prokaryotes only the single RNA polymerase can do all the function, but in case of eukaryotes there are the 3 types of RNA polymerase: RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3। और आप उसको कैसे लर्न करोगे? RNA polymerase 1 जो है वो rRNA बनाएगा, 2 जो है वो mRNA बनाएगा, और 3 है वो tRNA बनाएगा। रैमिट से उसको आप लर्न कर सकते हो। और जो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है और जो ट्रांसलेशन है वो अलग अलग प्लेस पे होगी। जो ये
mRNA बन जाएगा। फिर ये mRNA न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और साइटोप्लाज्म में फर्दर प्रोसेसिंग होगी उस हेट्रोजीनियस mRNA की। और उस प्रोसेसिंग में कौन कौन से स्टेप्स होंगे? फर्स्ट दैट इज़ द कैपिंग, सेकेंड इज़ स्प्लाइसिंग एंड थर्ड इज़ टेलिंग। जो कैपिंग होगी, किस कैप जो है वो कहाँ पहनाई जाती है? हेड रीजन पे। तो 5 प्राइम एंड पे हेड पे कैप पहनाई जाएगी और वो कैप किस ब्रांड की होगी? MGPP, मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट होगा स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग में जो इंट्रॉन्स होते हैं जो किसी के लिए कोड नहीं करते, जो इंटरफेयर करेंगे आगे ट्रांसलेशन प्रोसेस में, वो रिमूव हो जाते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्प्लाइसिंग। फिर आगे आ जाता है टेलिंग। टेलिंग में जो 3 प्राइम एंड है उस पर क्या ऐड होती जाएंगी? बहुत सारे एडेनिन ऐड होते जाएंगे और इस प्रोसेस को हम बोल देंगे पॉली एडिनाइलेशन। सो दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ eukaryotes. I hope you like the video. So if you like the video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.